Hey everyone, welcome back. In this video, I'll be taking your most common doubts that you have posted in the comment section. I've taken the screenshot and I'll be replying to your those doubts. So after watching this video, your every doubt about BIT Sindri and JCC counseling will be cleared. There won't be anything left. If something is left, then you can write it down in the comment section and I'll be replying to those doubts of yours. So whatever comment I'll be getting in the comment section of this video, I'll make a separate video about that comment and I'll be replying to those comment in a separate video. So do comment your views after watching this video. Do get your doubts cleared. If you'll write it in the comment section, then I'll be replying to those comments in the next video. So this is the first video of the series. So let's move ahead. The first comment that I'll be clearing your is BIT Sindri eligibility criteria for 2024. 75% in boards. No, you don't need 75% in your boards. More than 65% will definitely do the thing, and for SC/ST more than 45%. So I'm clearing it once and for all. You don't need 75% in boards to get into BIT Sindri. You only need 65%. That's the eligibility criteria for boards. For general candidate 65%, and for SC/ST more than 45%. भैया सिविल डबल ई या दूसरे ब्रांचेस के बच्चों का प्लेसमेंट होता है क्या सॉफ्टवेयर कंपनीज में ऑन कैंपस? होता है यार, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, टीसीएस में और डेलॉयट में, एनालिटिक्स कंपनी में तो एकदम होता है, पर एकदम आप जैसे सैमसंग ये सब बोलोगे तो उसमें दे आर नॉट एलिजिबल. सिविल एंड सिविल एंड ऑल दो लोअर ब्रांचेस लाइक प्रोडक्शन, सैमसंग और टॉप की जो कंपनीज है दैट पे मोर देन 10 lakhs per annum, दैट इन दोज कंपनीज दे आर नॉट एलिजिबल. बट एनालिटिक्स कंपनी, मास रिक्रूटर में, उन सब में होता है सिविल का प्लेसमेंट. तीसरा कमेंट देखते हैं यार. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर मैंने आपको क्लियर कर रखा है. कैन आई चेंज ब्रांच आफ्टर 1 year in BIT Sindri? No, you can't change your branch after 1 year in BIT Sindri. इट्स वेरी रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 2 साल 3 साल में एक आध बच्चे ने ब्रांच चेंज किया हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट the 3 years I have spent at BIT Sindri, I haven't seen a single case where there is a branch change after 1 year. लैटरल एंट्री बीटेक वाले का प्लेसमेंट होता है क्या बीआईटी सिंधरी में? उनका पैकेज कितना होता है आपको पता है क्या? हाँ, मुझे पता है यार, लैटरल एंट्री वालों का प्लेसमेंट होता है. सबका नहीं होता है, बट जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका प्लेसमेंट लैटरल एंट्री वालों का बीआईटी सिंधरी में बिल्कुल होता है. दे आर टैलेंटेड स्टूडेंट्स. लैटरल एंट्री, इनफैक्ट लैटरल एंट्री वालों का यार हम लोग से ज्यादा सीजीपीए वो स्कोर करते हैं. ठीक है, दे आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और उनका प्लेसमेंट होता है. बट द थिंग इज कि टॉप मोस्ट पेइंग कंपनी जो है उसमें वो एलिजिबल नहीं हो सकते. डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी, कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करती है. तो अगर कोई कंपनी है जैसे टाटा स्टील, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करती है कि दे ओनली वांट रेगुलर स्टूडेंट, तो उसमें लैटरल एंट्री वालों का एलिजिबिलिटी नहीं रहता, वो उसमें बैठ नहीं सकते. तो डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनीज. बट द थिंग इज कि अगर आप प्लेसमेंट की बात पूछो तो प्लेसमेंट होता है लैटरल एंट्री वालों का. इलेक्ट्रिकल लू या मैकेनिकल लू या माइनिंग लू, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट. बट if I were the candidate, I would have chosen electrical, after that mechanical, and at the last mining. Or once again yaar, if you are finding the content useful, please do press the like button, please do share this video. It will be beneficial for the candidate to whom you are sharing the video. And please do like, please do subscribe the channel if you, for future content like this. I'll be making a lot of videos about BIT Sindri, about JCC counseling. So if you want those videos, if you want to watch those videos, please do subscribe the channel for more such information. भैया लड़की पटाने का फॉर्म कहाँ मिलता है? रवि कुमार, बीआईटी सिंदरी में तो भूल जाओ बाबू वो सब चीज. शिप्रा पाठक की राइटिंग, बीआईटी सिंदरी में ईडब्ल्यूएस गर्ल का कोटा होता है. आई थिंक गर्ल का सेपरेट कोटा नहीं होता है, बट फीस कम होती है गर्ल्स की. लाइक रुपीज 32 रुपीज इज द फीस फॉर गर्ल्स एट बीआईटी सिंदरी. और उनकी कट ऑफ्स भी थोड़ा नीचे जाती है कंपेयर टू द बॉयज. भैया लैटरल एंट्री वालों को हॉस्टल अलॉट होता है? देखो, लैटरल एंट्री वाले जो आते हैं बीआईटी सिंदरी में, वो सेकंड ईयर में आते हैं, थर्ड सेम में.
आपको सेकेंड ईयर में हॉस्टल ऑन कैंपस अलॉट नहीं होगा। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे, व्हेन यू विल गो टू द थर्ड ईयर, देन यू विल बी अलॉटेड ए सेपरेट हॉस्टल फॉर लैटरल एंट्री कैंडिडेट्स। तो सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। फ्रॉम द थर्ड ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड ईयर आपको हॉस्टल अलॉट होगा थर्ड ईयर से। भैया वाईफाई नहीं है हॉस्टल में, देखो वाईफाई कैंपस में है वाईफाई, बट द थिंग इज कि फ्री वाईफाई अवेलेबल नहीं है। तो कॉलेज डजंट प्रोवाइड वाईफाई, सेपरेट सर्विसेज आर देयर। उसके लिए यू नीड टू मेक 5 or 6 कैंडिडेट्स कैन मेक ए ग्रुप एंड दे कैन टेक द वाईफाई। तो आप अलग से वाईफाई ले सकते हो, जैसे आप घर में लेते हो 1000 पड़ता है, वैसे ही आप 5-6 का ग्रुप बना के वाईफाई ले सकते हो। तो कैंपस में वाईफाई नहीं है, लाइब्रेरी में वाईफाई है, बट द कॉलेज डज नॉट प्रोवाइड वाईफाई हेयर एट बीआईडी सिद्री। काउंसलिंग इज ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखो काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काउंसलिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है और एडमिशन ऑफलाइन होता है। और जेसीसी काउंसलिंग कब होती है? जनरली इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में होती है। और काफी बच्चे की ये पता नहीं रहता कि उनका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलआरसी क्या होता है। तो अगर आपको काउंसलिंग का डिटेल्स चाहिए और इफ यू वांट गाइडेंस, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर रखूंगा, अपना मेल आईडी प्रोवाइड कर रखूंगा, उस पे मेल भेज सकते हो। यू विल रिसीव द काउंसलिंग गाइडेंस। ₹149 इज द फीस फॉर दैट। भाई आप इंस्टा आईडी दे दो, मेरे को कुछ डाउट पूछना है। इफ यू हैव डाउट्स प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रिप्लाइंग ऑल द कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। जो भी कमेंट इस वीडियो में आएगा सारा का रिप्लाई आपको मिलेगा, तो प्लीज डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। प्रकाश कुमार यादव। भैया अटेंडेंस का क्या इशू है? अटेंडेंस चिल है यार, एकदम चिल अटेंडेंस। और यू लव योर लाइफ, बीटेक लाइफ हेयर एट बीआईडी सिंधरी। ठीक है, इन्वायरमेंट कम्पिटेटिव है पर अच्छा है। ठीक है, यू लव योर 4 years एट बीआईडी सिंधरी, द कैंपस, द वाइब, एवरीथिंग इज परफेक्ट। My hometown is Dhanbad. Is it necessary to stay in the hostel? It's not at all necessary to stay in the hostel. It depends on you. अगर आप चाहते हो हॉस्टल में रुकना तो रुक सकते हो, नहीं तो यू कैन स्टे एट योर होम। रैगिंग नहीं होती यार, रैगिंग का कोई सीन नहीं। भैया आई वांट टू कांटेक्ट यू पर्सनली, हाउ कैन आई कांटेक्ट? यू कैन मेल मी। आई हैव प्रोवाइडेड द मेल, आई पिन द मेल इन द कमेंट सेक्शन, देयर यू कैन गो एंड यू कैन मेल मी वॉट एवर डाउट्स यू हैव। इस साल बीआईटी में 400 सीट नहीं बढ़ेगी क्या? Next year it can increase. From this year it's very difficult. From 2025 it may increase because new hostels are being constructed in the campus. तो इस साल तो नहीं पर अगले साल डेफिनेटली बढ़ सकती है। भैया केमिकल ब्रांच सही रहेगा बीआईडी सिंधी में, क्योंकि मुझे वही मिला तो ले सकते। केमिकल ब्रांच इज गुड एट बीआईडी सिंधी। बीआईडी सिंधी इज नोन फॉर इट्स कोर ब्रांचेज यार, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, दीज आर द ब्रांचेज दैट बीआईटी सिंधी इज नोन फॉर। तो केमिकल आप लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इवन इंटर्नशिप्स आती है, प्लेसमेंट्स ठीक ठाक होती है। केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, दीज आर द, इवन मेटल, मेटल भी बहुत अच्छा है। तो दीज आर ऑल द ब्रांचेज दैट बीआईटी सिंधी इज नोन फॉर। आंख बंद करके आप ये सारी ब्रांचेज ले सकते हो बीआईटी सिंधी। हॉस्टल इज नॉट इवन ठीक ठाक, बेकार है ये कॉलेज। इट्स लाइक गवर्नमेंट कॉलेज। ये मैंने जान के कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया यार। इट्स लाइक गवर्नमेंट कॉलेज। आप लिखना क्या चाहते हो? ये तो फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट कॉलेज ही है। अगर आप इस कॉलेज में आ रहे हो तो ये मन बना के आओ कि ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है, आपका एलपीयू मणिपाल नहीं है। अमन कुमार। सो दीज वेर द कमेंट्स दैट आई थॉट आई शुड रिप्लाई टू। अगर आपका कोई और कमेंट है तो प्लीज डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कोई और क्वेरीज है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। And if you have watched the video till the very end, do like this video, do subscribe the channel, show your love, share this video, and take care. Bye bye. Have a nice day.